दर्द इतना था कि रात होते होते वो और बढ़ता चला जा रहा था। मुझे लग रहा था अब मेरा हाथ हिलाना भी मुश्किल है, मैं कैसे ही क्या करूँगी। और राइट हैंड में था ये प्रॉब्लम, शोल्डर से थोड़ा नीचे। और मुझे लग रहा गुरु जी शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत नाल गुरु जी का जिहड़ा शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। सो गुरु जी की बहुत ज़्यादा किरपा रही है। सो गुरु जी बहुत ज़्यादा जिहड़ा ब्लैस कर रहे हैं। सो लख लख शुकराना गुरु जी। सो पहला सत्संग जो मैं गुरु जी की संगत नाल शेयर करना चाहनी हाँ। संगत जी लुधियाना दे विच गोविंद गोधाम दे विच जिहड़ा है सोमनाथ मूल ज्योतिर्लिंग के दर्शन दे लई 2 दिन तो मतलब 2 दिन का इत्थे रखा गया सी भी उत्थों आए सीगे ज्योतिर्लिंग दे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ मतलब ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋਮਨਾਥ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਵੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਰਥਡੇ ਮੰਥ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਥ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੰਥ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ। ਸੋ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਲਰਫੁਲ ਚੋਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਨੰਦਦਾਇਕ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੰਥ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਆਲੂ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕੜੀ ਮੇਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਜੀ ਵੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੀਟਸ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਸੀ, ਬਰਫੀ ਸੀ ਐਂਡ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੇ, 7 ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲੇ, 1 ਲੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਸੁਬਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਹੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ। ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਦਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹਦਾ 4th ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ, ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਪਾਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਸ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਔਰ 5th ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿੱਗੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ,
ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਹਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਪਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਐਸ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵੀਟਸ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 8 ਕੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗਿਫਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਰਥਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ 7 ਜੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 7 ਮਾਰਚ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਸੁਰਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਤਰ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 5 मार्च 2026 को गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी
मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि आप हो तो मैं इतना निश्चिंत होकर होली जैसा खतरनाक त्योहार निश्चिंतता से मना पाई। खतरनाक इसलिए क्योंकि आपकी संगत बनने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि अ, जो होली, दिवाली हम बड़ा त्योहार मानते थे, तो ये होली, दिवाली पे और दूसरी तांत्रिक क्रियाएँ भी होती है और दुश्मन तो हाथ धो के, नहा धो के दुश्मनों की गैंग मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन ये तांत्रिक त्योहार पे तांत्रिक त्योहार इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनका ये उनका उनके लिए ये तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा असर होता है। तो उसमें आपने इतने अच्छे से बचाव रखा, बेटे अंकल की इतनी रक्षा की, बेटे अंकल के ऊपर बहुत सारी मुसीबत आई थी, आपने सब मुसीबतों को आड़े हाथ लिया और मेरे बेटे पे सॉरी गुरुपा आपके पोते पे आँच भी नहीं आने दी, उसका अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और गुरुपा कई साल पहले मेरे पति अंकल आपके दामाद को किसी ने खाने में कुछ मिला दिया था जिसके कारण ही उनका बिहेवियर ऐसा हुआ था। तो इस बार तो आपने संगत बना के रखा है, आपकी कड़ी नज़र है दुश्मनों के ऊपर और आप बोलते भी है कि अब उनका टाइम आ चुका है, अगर वो कुछ भी करना चाहेंगे तो वो उनके ऊपर पलटवार होगा। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि गुरुपा इस बार शत्रु ने पति अंकल का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि मेरा पूरा परिवार आपकी नज़र में है। तो आपने पति अंकल की भी सुरक्षा की, उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। यहाँ मुझ पर भी मारण क्रिया हुई थी, लेकिन आपने मुझे मारण क्रिया से बचाए रखा और पे बाल मुझ पे आँच भी नहीं आने दी, तो मेरी को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके कई दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहे हैं कि तूने जो उम, पूजा करवाई थी तांत्रिक की बातों में आके, तो उसका उल्टा असर तेरे परिवार पे हो रहा है। लेकिन गुरुपा अ, मैं डर गई थी और वो डर के कारण कि कुछ भला हो मैंने पूजा करा ली थी गुरुपा। मैं आपसे उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। आप ही सँभालो और सभी संगत परिवार को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब हम गुरुपा की संगत में पड़ जाते हैं तो हम लेडीज़ इमोशनल होती है और कहीं से भी हमें कुछ पूजा का पता चलता है तो लाइव हम देख बैठे-बिठाए उस पूजा के अंदर पूजा करवा लेते हैं, उसमें हमारा पैसे का भी नुकसान होता है और उसका उल्टा असर पड़ेगा कि सीधा हमें कुछ नॉलेज नहीं होता और ये पैसे कमाने वाले बाहर के तांत्रिक इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देना। गुरुपा की संगत अगर हम जुड़ जाते हैं तो हमें कोई भी पूजा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा देवों के देव महादेव है, गुरुपा के आगे किसी की नहीं चलती, गुरुपा हमारे शत्रुओं से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सभी संगत आंटी जी को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ औलाद की बात आती है हम इमोशनल हो जाते हैं, उस तरह मैं भी इमोशनल हो गई थी और मैंने वो पूजा करवा ली थी तो उनका कुछ असर नहीं हो तो चलता, लेकिन उल्टा असर हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। फिर आखिर में गुरुपा को ही आना पड़ा बचाने और गुरुपा ने ही बचाया, तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना। वो तो अच्छा हुआ कि वो तांत्रिक ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स माँगी थी, तो उसमें मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होके मेरी फ़ोटोग्राफ्स लेके भेजी थी। तो गुरुपा साथ-साथ पहुँच गए थे, तो कुछ उल्टा असर मुझ पे उस तरह नहीं आ पाया जिस तरह आना चाहिए था। तो गुरुपा एक बार फिर आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्राना। और सभी संगत आंटी, अंकल जी जो इस समय मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर सुन रहे होंगे, उनको मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती हूँ कि जब हम इस दौर से गुजरते हैं, जब हम ब्लैक मैजिक काले जादू इनका शिकार होते हैं तो और गुरुपा शिकार होते हैं, लेकिन जब गुरुपा ने हमें संगत बना लिया है तो हमें इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कोई नाव पे एक ही नाव पे सवार होना, ये ऐसा एक जहाज है गुरुपा का कि ये नानक नाम जहाज अगर गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाकर इस जहाज में बिठा लिया है
तो हमें कहीं 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हमें भूखों को खाना खिलाना चाहिए, बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, चींटियों को गुड़, शक्कर, आटा, काले तिल मिलाकर चींटियों को लंगर करवाना चाहिए और बंदर को केला खिलाना चाहिए, कुत्तों काले कुत्तों को रोटी देना चाहिए और जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए और नंदी महाराज को गुड़ चना खिलाना चाहिए, पितरों की सेवा करनी चाहिए, कुल देवी को मनाना चाहिए। इन तरह के भोंदू बाबाओं की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कैसे क्या कुछ हो रहा है और हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अगर गुरुपा ने हमें अपनी संगत बना लिया तो इस तरह के प्रलोभन में ना पड़े। मैंने तो गलती कर दी और गुरुपा ने उस चीज़ से बचा ही लेंगे गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है। पर और कोई संगत जो न्यू सत्संग आंटी जी जुड़ी हो या फिर जो नई-नई गुरुपा की संगत बनी हो और गुरुपा की संगत में सत्संग सुनने के साथ-साथ अगर किसी तरह से ऐसा कुछ पता चला कि हाँ, ये पूजा कराने से सब ठीक हो जाएगा, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वो नहीं कराए, उसकी जगह इस तरह के उपाय करे, दीन दुखियों की सेवा करे, किसी बुजुर्ग की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे और हमारे गुरुपा का सिर्फ मंत्र जाप, सिमरन, शुक्राना करते रहे तो ही हमारे हँसते-खेलते कष्ट कट जाते हैं। गुरुपा से ऊपर कोई शक्ति नहीं। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझसे गलती हो गई। आपकी ही बेटी हूँ पर ये सबक मुझे बहुत अच्छी तरह मिल गया है और अ, उसका शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मेरी आँखें खोल दी जब आपने मुझे सत्संग सुनवाया। मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, इस पीरियड में ही यह घटना घटी तो मैं कम नुकसान में ही हो गई। वरना उसका मैंने भी बहुत खामियाजा भुगता है। उस पूजा के बाद उल्टा मेरी भी सेहत ठीक नहीं रहने लगी और मेरे बेटे अंकल को भी काफ़ी कष्ट पहुँचा। वो तो गुरुपा ने अपनी स्कैनिंग करके टेलीपैथी के थ्रू मुझे बता दिया कि तूने ही वो पूजा कराई थी जिसका उल्टा असर तेरे बच्चे पे हो रहा है। तब जाके मेरी आँखें खुली। तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हुई गलती कोई और संगत आंटी जी ना करे। मानती हूँ हम समझदार होते हैं लेकिन जब हमारी औलाद की बात आती है ना, तब हम औरतें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जहाँ हमें रास्ता मिलता है वहाँ हम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जब हम गुरुपा की संगत में हैं, मतलब इस जहाज को ही पूरी शिद्दत से निभाए। गुरुपा गुरुपा की संगत हूँ। गुरुपा की संगत बनने को 15 महीने साक्षात रूप से हो चुके हैं। वैसे तो कई जन्मों से गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा है। करीब 200-300 साल हो गए होंगे क्योंकि कई संगत में मैंने सुना है कि मैं एक ओल्ड सोल हूँ। गुरुपा ने मेरा कई जन्मों का सफ़र देखा है। इस तरह से गुरुपा हमें ट्रेन कर देते हैं कि हमें आत्मा की जर्नी तक समझ में आने लग जाती है और ये जो कष्ट आते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे ही कुछ कर्मों की सज़ा होते हैं और कहते हैं जब हम पे ब्लैक मैजिक या जादू टोना होता है, मतलब कई सारे कष्ट धड़ाधड़ आके यानी फास्ट बीट से आकर अ, चले जाते हैं। पर हमारे साथ गुरुपा है तो वो हमारे कष्ट काट देते हैं। 90% कष्ट तो वो खुद काट लेते हैं, 10% हमें देते हैं। तो ये एक तरफ से हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है। तो गुरुपा जैसे बताते हैं कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो तुरंत फटाफट वो सत्संग सुन लेना चाहिए। गुरुपा का शुक्राना अदा करना चाहिए और मंत्र जाप करते रहना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करे तो भी सब यही काम शिद्दत से करे तो हम इन चैलेंजेस से बाहर निकल जाएँगे और साथ में गरीबों की सेवा करना और जो मैंने उपाय सत्संग में बताए वो करते रहना। और इतना समझदार बना दिया गुरुपा आपने मुझे कि पहले मैं पछतावा करती रहती थी, लेकिन अब मुझे कुछ गलती हुई तो मैं सत्संग के माध्यम से अपने संगत परिवार में बता देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब ये गलत पहले तो मैं पछतावे के अंदर ही रिग्रेट के अंदर रहती थी, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया और ज़्यादा डीप परेशान हो जाया करती थी। लेकिन अब गुरुपा की संगत परिवार एक इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म गुरुपा ने दे दिया है कि अपने आप ही जब शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, तो सोचती नहीं हूँ क्या बोलना है, पर इस तरह की बातें मुँह से निकल जाती है। यानी कि गुरुपा का ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है कि अब हम पछतावे में जाने की बजाय अपनी गलती को भी
एक सबक बना के दूसरे वो गलती नहीं करे। मैंने एक गलती की तो मेरी गलती से सबक लेके 50 लोग वो गलती ना करे और उनका समय, ऊर्जा, पैसा सब बचे और अ, उनको मेरे द्वारा मार्गदर्शन मिले। गुरुपा ने मेरे द्वारा नहीं, सॉरी, मैं तो माध्यम हूँ, गुरुपा ने मुझे माध्यम बनाया है। गुरुपा, इतना अच्छा माध्यम बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। और इतना मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए शुक्राना कि अब मैं पछतावे की जगह लोगों को सीख देने का माध्यम बन गई हूँ, ताकि जो मैंने गलती की वो और ये सत्संग सुनने वाली 50-100 जो मेरे जैसी इमोशनल माताएं हैं वो ये गलती ना करे, उनके तो पैसे बच जाए और उनका समय, ऊर्जा और सब कुछ बच जाए। तो मैं आपको 100% श्योर है कि ये कहूँगी कि मुझे ये अनुभव आया है और समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख जाता है। ज़रूर जो आने वाली जो ये सत्संग सुन रही है वो संगत गुरुपा की बहुत लाडली संगत होंगी, जिनको गुरुपा मेरे द्वारा ये सुनवा रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में कुछ हो भी कि हाँ ये पूजा करानी है, हाँ ये करा लेती, तो वो उस समय उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो कुछ ना करें, क्योंकि गुरुपा साक्षात महाशिव है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये सब तांत्रिक वगैरह सिर्फ हमारे डर का फायदा उठा के हमको डरा धमका के सिर्फ अपना ही पेट भरने का काम करते हैं। इसकी जगह ये वाले पैसे किसी गरीब को लंगर करवाने में लगवाए, गुरुद्वारे में दर्शन करने जाए और ज़रूरतमंद की सेवा करे। तो जिसको यह सत्संग गुरुपा दिलवाना चाहते हैं उनको मिल गया होगा। सारे संगत परिवार ने मेरा इतना अच्छे से ये सब सत्संग सुना उसके लिए शुक्राना। गुरुपा इतना अच्छा माध्यम बनाने के लिए शुक्राना। गुरुपा, मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं रिग्रेट, पछतावा बहुत करती थी, पहले गलती कर लेती थी पर इस चीज़ से मैं बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन अभी सत्संग सुनवा के ही मुझे लगा कि मैं रिलीज़ हो गई हूँ। मैंने जो गलती की उसका मैंने गुरुपा को बता के माफ़ी भी माँग ली और सभी संगत परिवार को बोलने का माध्यम भी बन गई। तो गुरुपा, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वथा भला। रूहानी आंटी जी का भी शुक्राना। रूहानी आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि आप जैसे शुक्राना सत्संग माध्यम जो गुरुपा ने मुझे आपको दिया है, आप ही के कारण, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो मेरी लिंक बैठी है आपको सत्संग देने की, वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। गुरुपा, रूहानी आंटी जी को भी प्लीज करना, वो बहुत अच्छे से मुझे भी एक्सप्लेन करती है और मेरे सारे सत्संग शेयर करती है। और सभी का शुक्राना। और गुरुपा हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग एडिटिंग करने वाले का भी भला। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। ये हमारा ही सत्संग परिवार है। यहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और हम एक जैसे सफ़र में हैं। जैसे कहीं हम ट्रेन में जाते हैं, जैसे पंजाब से हम कोई गुरुद्वारे जा रहे हैं और एक ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ही सफ़र पे हैं, उस तरह मैं सभी संगत परिवार को अपना यात्रीगण मानती हूँ, एक ही जर्नी के वो मोती मानती हूँ जिन्हें गुरुपा ने स्वयं अपने हाथों से एक धागे में पिरोया है। तो सभी संगत परिवार सभी का भला हो, गुरुजी सबको ब्लेस करे, सभी अपनी अपनी सबकी संतानें सेफ रहे, ब्लेस रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी के चरणों में बहुत सारा शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरु जी हम सबको ही, मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ, सारी संगत इतनी ब्लेस्ड है। गुरु जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सबको मिलती रहती है
और गुरुजी न जाने कैसे-कैसे इन सबको ब्लेस करते हैं कि सभी बहुत ही सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे वाह! मुझे गुरुजी ने इस तरीके से ब्लेस किया। लेकिन ये गुरुजी का प्यार है। गुरुजी हम सारे ही बच्चों से, अपने सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो सबकी अरदासें, सबकी बातें, सब इतनी जल्दी सुन लेते हैं, सबकी तकलीफ़ें इतनी जल्दी दूर कर देते हैं। बस जो थोड़े बहुत चीज़ों में किसी में अगर टाइम लग रहा होता है तो उसके लिए भी शायद हम खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। गुरुजी तो हर पल, हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमें उन मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इन सब के लिए गुरुजी बहुत सारा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि गुरुजी आप नहीं होते तो हम बच्चों का क्या ही होता। गुरुजी ने मुझे भी बहुत 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 ब्लेस किया है इन सो मेनी टाइम्स और इसके लिए अनंतम शुक्राना मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, हम सबको ही ब्लेस किया है। और गुरुजी का ये प्यार अ, मतलब अनमोल है हमारे लिए, बहुत अनमोल है, बहुत ख़ास, बहुत अनमोल, बहुत ज़्यादा प्रीशियस मीन्स जिसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। गुरुजी आपके इस प्यार के लिए बहुत सारा शुक्राना। अब तक जो प्यार नहीं मिला था वो सारा प्यार आपसे मिल गया गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना। हमेशा हम बच्चों के साथ ऐसे ही रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा और बस हमेशा हम संग रहिएगा गुरु का। संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मेरे हाथों में काफ़ी सीवियर पेन हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसमें क्या करूं। दर्द इतना था कि रात होते होते वो और बढ़ता चला जा रहा था। मुझे लग रहा था मेरा हाथ हिलाना भी मुश्किल है, मैं कैसे ही क्या करूँगी। और राइट हैंड में था ये प्रॉब्लम, शोल्डर से थोड़ा नीचे। और मुझे लग रहा था कि ये कैसे भी ठीक हो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे नींद आ रही थी मतलब मैं उसके बाद दर्द की वजह से सो नहीं पा रही थी। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ इसे ठीक कर दो, मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ। मैंने पहले जलप्रसाद लगाया, फिर मैंने ऑयल भी एक था दर्द के लिए वो लगाया, लेकिन कुछ भी 1% मुझे आराम नहीं मिला। मैं हाथ के जहाँ दर्द था वहाँ हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जप करती रही और सोने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ भी आराम नहीं। थोड़ी देर का आराम हुआ, आँख लगी, फिर एकदम से उठ गई क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर सुबह के 4 बजने को हुए तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे गुरुजी ने ही शायद थॉट डाला होगा कि चंदन टीका लगा। तो मैंने संगत जी चंदन टीका में थोड़ा-सा जल प्रसाद मिलाकर उसको पूरे हाथ में लगा लिया और जहाँ दर्द था और उसके आस-पास और नीचे इस पूरे हैंड में मैंने उसे लगाया। और क्योंकि दर्द स्प्रेड हो रहा था, वो नीचे की तरफ आता जा रहा था, तो मैंने पूरे हाथ में लगा लिया। और संगत जी, सुबह जब मैं सो के उठी, गुरुजी से बस मैं अरदास करके सो गई, गुरुजी प्लीज़ इसे अब ठीक कर दो और थोड़ी देर मैं सोना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ सुला दो। सुबह में जब मैं उठूँ मैं एकदम ठीक हूँ और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुबह जब मैं उठी और मेरे हाथ में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, गुरुजी ने वो दर्द एकदम छूमंतर कर दिया था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। मैं मतलब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी, कि वो दर्द कितना ज़्यादा था और गुरुजी ने उसे कितने मतलब चमत्कारिक ढंग से एकदम से छूमंतर कर दिया। हमारे गुरुपा सच में बहुत दयालु हैं और हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जो अपने बच्चों को दर्द में बिल्कुल नहीं देख पाते हैं और जब हम बच्चे उनसे ऐसे कहते हैं, वो उस चीज़ को चुटकियों में गायब कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, हमेशा ऐसे ही अनसंग सहाय रहिएगा और जिस तरह आपने मुझे ब्लेस किया उसी तरह बाकी सारी संगत को भी आप ब्लेस करना, जिसके भी जो दुख दर्द तकलीफ़ हैं उन्हें दूर करना, लोगों की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आप ठीक करना,
जिसको जिस तरह का भी हेल्थ इशू है, पर गुरुजी आप सबको ठीक करना। और ये जो ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते हैं, तो गुरुपा ये ब्लैक मैजिक करने वालों को आप सद्बुद्धि दो या फटकार, पर जो भी दो, मतलब इनको सुधार दो प्लीज़। ये बहुत गलत कर रहे हैं कि लोगों की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं, उनकी पूरी आधी आधी लाइफ, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो उनको भी आप सद्बुद्धि दो और सुधार दो। और बस आप हमसे यूं ही प्यार करते रहिए। और हम संगत ही नहीं, बाकी जो आपकी संगत नहीं है वो भी आपसे प्यार करने लग जाएं, ऐसी कृपा बरसाइए। हम आपको एक पल के लिए नहीं भूलें गुरुपा, हमें ऐसी दाद दीजिए। सदा आपका गुणगान करते रहें, आपका शुक्राना अदा करते रहें, ऐसी कृपा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी,